अच्छा, प्रेजेंटेशन आज किसका होगा? 350 का होगा ना? यस सर। लास्ट डेट तो 350 का। हाँ, इस वीक में 350 का ही तो है। কৌশিক দাস, সুরজিৎ, পিঙ্কি আছে? প্রেজেন্টেশন আছে। रोहन साव नहीं ना? रोहित আছে? संजना तस्नीम আছে। आकाश सापुई। और तस्नीम अली। अभिजीत देखना तुम लोग का मैच है ना? आकाश, पिंकी और आ जाओ जल्दी से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइटिंग पेट बताओ ये की इधर में खाली है तो यहाँ बैठो ना, इधर आ जाओ सामने में। ये इधर के बस इधर बैठ जाओ, सामने में बैठ, पीछे से दिखने में दिक्कत होगा। Today my topic is VPC. VPC stands for Virtual Private Cloud, and VPC is networking of AWS, and it is private isolated for AWS, and we create five insight region. And types of VPC, two types: custom VPC and default VPC. Component of VPC, CIDR, IP address subnet, elastic IP, network, ACL, security group, employed router, root table. That's it. बोलो पुरोटा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आकाश। चलो। Good morning sir. Good morning everyone. Today my topic is VPC. VPC stands for Virtual Private Cloud. It is a virtual it is a virtual private network. It is a AWS. We can create a 5 region of VPC. We can create 5 region of VPC. We can create 5 region of VPC and 5 region. 5 VPC in a region. 5 VPC in a region, and
component of VPC, types of VPC, default VPC and custom VPC. Component of VPC, CIDR, internet gateway, IP address, NACL, IP address NACL, subnet mask, root table, सबनेट मार्क्स ना सबनेट subnet, root table, elastic IP, elastic IP, তারপর হচ্ছে peering connection, security group, virtual private gateway, implied router. That's all. তুমি যখন টার্মগুলো বলছো না ইউ হ্যাভ টু ডেসক্রাইব 1 2 লাইন অ্যাবাউট দ্যাট টার্ম Okay. শুধু তুমি নামগুলো বলে দিচ্ছ তাহলে এখানে মানুষের মনে অনেক প্রশ্ন আসছে they can ask question also Okay, sir. পরের কথা ভুলে গেছি। ভুলে গেছো মানে কি পড়ছো না তার মানে পড়াশোনাটা মন দিয়ে না করলে তো ভুলে যাবে অন্যদিকে মন আছে ঠিক আছে চলে এসো আচ্ছা তসনিম Good morning, sir. Today I will give a presentation on VPC. VPC stands for Virtual Private Cloud, and VPC is a network where we can launch and secure our data within AWS. And VPC is of two types: private and like custom and default. And VPC subnets are of two types: custom and private and public. VPC. CIDR और भी CIDR है इंटरनेट गेटवे है इंटरनेट गेटवे और राउट टेबल नेटवर्क ACL इलास्टिक आईपी इलास्टिक आईपी और कुछ नहीं बोलना Sir, why do we use VPC? We use VPC for securing our data and launching it, and that's all. इसको और अच्छे से बोल सकते थे we can create an isolated network isolated infrastructure in a public cloud using a public cloud but we can create a private isolated network using the VPC ही मेन पोर्शन है आपका AWS क्लाउड का VPC आप अगर सीख गए ठीक से यूज करना तो आपको 90% आ गया AWS का सारा कुछ VPC के अंदर ही बनने वाला है आगे चल के आ जाओ 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 बस मैम डांट देगी तुमको जाओ स्पीकर में बात विशाल व्यापार लग रहा है अभी पकड़ लिया इसका नहीं होगा पीछे मैम बैठा हुआ है देख पीछे मैम बैठा हुआ है
तुम लोग पीटीएम के लिए कुछ बोला गया है क्या? नहीं बोला गया पीटीएम के लिए? मतलब ट्यूसडे डेट नहीं पता। ट्यूसडे बोला है। फिक्स डेट का फिक्स डेट बोले मैम बोली होगा, मैम बोला बोली होते होते पारे। बोले तो होते पारे 356 है। बोला है तो তোমার ম্যাডাম আসুক ডিসকাস করে আমি ডেট বলে দেবো সেদিনই পিটিএমটা আমরা করব। স্যার আমাদের তো তাহলে কি মঙ্গলবারই দাঁড়া ম্যাডামের সাথে একবার কথা বলবো। हाँ तो जैसे कि बात कर रहे थे हम लोग क्या बीपीसी के बारे में। सो बीपीसी इज अ आइसोलेटेड नेटवर्क इन अ पब्लिक क्लाउड, है ना? क्या कर रहा है? इसी में लिखा है। ये असाइनमेंट नहीं है। असाइनमेंट बड़ा कॉपी में होना चाहिए। माइंड मैप किधर है? असाइनमेंट नहीं है, रफ कॉपी है। रफ कॉपी कहाँ दिखाओ? मेरा ये रफ कॉपी अच्छा मायने तुम लोग दिखाने वाले थे ना आज कल स्टडी का एंड में बताया गया कि मायने बना के लाना है बीपीसी का। बना के लाए हो सब? এটা তো পারবে सब बनाए हो ना? सर हम तो बीपीसी का माइंड मैप पहले ही आपको दिखा दिया, आप साइन भी कर दिए। ठीक है। नहीं जो लोग नहीं किया है जमा अच्छा। कर दिए हैं। तो आपका बीपीसी का पोर्शन में आते हैं। प्रीवियस डे वी हैव डिस्कस अबाउट द बीपीसी एंड आल्सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ इंफ्रास्ट्रक्चर इन बीपीसी। एक रीजन के अंदर हम लोग मुंबई में करने का ट्राई कर रहे थे बट देयर वाज सम इशू इन मुंबई रीजन, सो दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग सेम वर्जीनिया। हम लोग वर्जीनिया को यूज करके ही बनाने वाले हैं बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमारा जो बीपीसी का थ्योरी पोर्शन था वो सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टू प्रैक्टिकल पोर्शन। सो प्रैक्टिकल आप जब करोगे तो आपको ध्यान से हर स्टेप को फॉलो करना है और देखना है, क्योंकि एक जगह में भी आप मिस्टेक अगर करते हो तो आपका कनेक्टिविटी में इशू आएगा। तो इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना भी है और समझना भी है। क्लियर? सो हमारा सिनारियो के हिसाब से हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरा खुद का सिक्योर सर्वर भी रहेगा। फॉर एग्जांपल लाइक दैट इज माय डेटाबेस सर्वर कंपनी का, और कंपनी का खुद का समझ लो वेब सर्वर भी है। इट्स अ वेब सर्वर। तो वेब सर्वर वो सर्वर होता है जिसका एक्सेस ग्लोबली मिलता है सबको। वेब सर्वर जैसे गूगल इज अ वेब सर्वर। गूगल का खुद का वेब सर्वर है जिसको हम लोग दुनिया से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यस है कि नहीं? तो गूगल का खुद का डेटाबेस सर्वर भी है जहाँ पे सारा डेटाबेस स्टोर होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो क्या लगता है आपको डेटाबेस सर्वर जहाँ पे है वहाँ पे वेब सर्वर भी है, या फिर वेब सर्वर जहाँ पे है डेटाबेस सर्वर भी उधर ही है, ऐसा है क्या? तो डेटाबेस सर्वर कहाँ पे होना चाहिए और वेब सर्वर कहाँ पे होना चाहिए? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कहाँ रखोगे? हाँ डेटाबेस तो डेटाबेस सर्वर में रहेगा, इसलिए उसका नाम डेटाबेस सर्वर है। बट उसको आप कहाँ पे लोकेट कहाँ पे करोगे? वेब सर्वर। तो फिर आपका डेटाबेस भी हैक हो सकता है, सिक्योर नहीं है। इट्स अ पब्लिक नेटवर्क। वेब सर्वर कहाँ पे रखोगे? पब्लिक नेटवर्क में रखोगे, बिकॉज आप क्या चाहते हो कि पब्लिकली एक्सेसिबल हो सबके लिए। डेटाबेस सर्वर भी एक्सेसिबल दे दोगे सबको। मतलब आपका सैलरी कितना है उसमें लिखा रहेगा, आपका आधार कार्ड का नंबर क्या है वो लिखा रहेगा,
आपका पैन कार्ड का नंबर क्या वो लिखा रहेगा, हाँ? यस सर। तो कहाँ पे रखोगे? वहाँ प्राइवेट नेटवर्क, इसको आप रखोगे आइसोलेटेड नेटवर्क में, है ना? मतलब ये आपका ऐसा नेटवर्क में होगा जिसका एक्सेस आपके पास ना हो, आउटसाइड से कोई एक्सेस नहीं ले सकता। हाँ, आउटसाइड से वो एक्सेस नहीं हो सकता। इसका मतलब ये प्राइवेट नेटवर्क में होना चाहिए, जो बाहर का यूजर, जो इंटरनेट में बैठा यूजर है, ये डेटाबेस सर्वर को एक्सेस ना कर पाए। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ? सो ये मेरा अगर इंटरनेट है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, सो हम लोग सर बोलते प्रिंटर शेयरिंग बोल ও বাবা প্রিন্ট স্ক্রিন শেয়ার করে নি আমি না এতক্ষণ ধরে কি দেখছিলে তাহলে তোমরা? দাঁড়াও আমি শেয়ার করি স্ক্রিন। না এবার দেখতে পাচ্ছ? सर रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस सर यस सर गूगल मीट में तो रिकॉर्डिंग का कोई जगह नहीं है, है कि नहीं? फिर भी मैं ट्राई किया हूँ सॉफ्टवेयर से करने का। अब इसमें रिकॉर्डिंग का क्वालिटी कैसा है मुझे नहीं पता। अच्छा ही आता है सर। तो वेब सर्वर आप कहाँ पे प्लेस करोगे? आपका पब्लिक नेटवर्क में। एम आई क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। तो ये आपका डेटाबेस सर्वर है जो प्राइवेट नेटवर्क में जाएगा, जिसका एक्सेस इंटरनेट में नहीं होगा, और वेब सर्वर आपका पब्लिक नेटवर्क में जाएगा जिसका एक्सेस आपका इंटरनेट में होगा। अब ये भी कंडीशन होना चाहिए कि दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाए, बिकॉज जो भी कुछ अपडेट हो यहाँ पे, जैसे कोई डेटाबेस में डेटा भेज रहा है तो वो वेब सर्वर से डेटाबेस सर्वर में आके सेव हो जाए। इंटरनली कनेक्टिविटी भी होना चाहिए, लेकिन ये समझ रहे हो? नहीं सर समझ। ये तो हो गया नॉर्मल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग ऑन प्रेमाइसेस यूज करते हैं, कंपनी यूज करता था पहले। नाउ दे आर मूविंग टू क्लाउड। अभी कहाँ पे मूव कर रहा है कंपनी? क्लाउड। अब सेम इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड में भी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या बनाए? इसके लिए हम लोग VPC बनाए। समझ में आ रहा है? हम लोग क्या बनाए? VPC बनाए। VPC में प्रीवियस डे का सिनारियो मैं दोबारा से यहाँ पे बना रहा हूँ। क्या किया VPC में? इसको ना मैं ऐसा ही करता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर में देता हूँ। ये क्या करना है इससे? ये मेरा समझ लो VPC है, ओके? और इस VPC के अंदर मैं स्क्रीन विजिबल है सबके लिए? यस सर अच्छा, इस VPC के अंदर मेरा ये दो सबनेट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ये एक सबनेट है, दूसरा सबनेट ये वाला है। क्लियर? और इस सबनेट में मैं अपना EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने वाला हूँ, इधर में और इधर में भी। और मुझे चाहिए होगा इंटरनेट गेटवे, और मुझे चाहिए होगा राउटर, इसके अंदर ही होगा। ओके, सो ठीक है, बस इसको यहाँ तक ही रखते हैं और हम लोग यहाँ पे डालते हैं। सो ये मेरा VPC है, एज यू सी दैट इज माय VPC, एंड क्लियरली यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ कि ये मेरा पब्लिक सबनेट है। इट्स माय पब्लिक सबनेट। पब्लिक सबनेट में मैं क्रिएट करने वाला हूँ EC2 इंस्टेंस। ये मेरा वेब सर्वर बनने वाला है। क्या बनने वाला है? वेब सर्वर। ये सेम सिनेरियो मैं इधर में कर रहा हूँ। क्लियर? और इसके लिए मैं पब्लिक IP जनरेट करवाऊंगा, क्योंकि ये मेरा क्या बनेगा? वेब सर्वर।
बट whenever we create a BPC we have to define the subnet, है ना? तो हमारे केस में सबनेट हम लोग क्या यूज कर रहे थे, 10.0.0.0/16. अब कोई भी और रेंज यूज कर सकते हो प्राइवेट आईपी का, बट प्राइवेट आईपी आपको यूज करना चाहिए यहाँ पे, कोई पब्लिक आईपी नहीं. प्राइवेट आईपी क्लास ए का 10 रेंज का होता है, क्लास बी का 172.16 डॉट से लेके 172.31 डॉट तक होता है, और क्लास सी का प्राइवेट आईपी 192.168. उसके बाद आप कुछ भी नंबर डाल करके यूज कर सकते हो. तो ये रेंज है प्राइवेट आईपी का. क्लियर? तो इसी में आपको यूज करना पड़ेगा. एंड द CIDR आप मिनिमम मतलब ले सकते हो 28, मतलब मिनिमम सबनेट मिनिमम होस्ट मिलेगा आपको 28 में, और मैक्सिमम होस्ट आपको मिलेगा 16 में. क्लियर? तो 16 से लेके 28 तक आप CIDR यूज कर सकते हो. ये लिमिटेशंस है BPC में AWS का. अच्छा, तो इस सबनेट के अंदर ही मुझे ये सबनेट क्रिएट करना पड़ेगा. सो व्हेन वी क्रिएट अ सबनेट, तो एक मेरा सबनेट पब्लिक सबनेट होगा जिसका मैं IP सेट कर रहा हूँ 10.0.10.0/24 का, और दूसरा मेरा जो सबनेट क्रिएट होगा इट्स अ प्राइवेट सबनेट, जहाँ पे मेरा क्या होगा, जहाँ पे EC2 इंस्टेंस होगा, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका प्राइवेट सर्वर होना चाहिए, दैट इज अ डेटाबेस सर्वर. क्लियर? मैं ऐसी सिनारियो बता रहा हूँ आपको. एंड इसका सबनेट होगा, मैं इस सबनेट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, और ये डिफरेंट नेटवर्क में है 10.0.20.0/24. ठीक है? तो 10.0.20.0 है और 10.0.10.0 है. ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकता विदाउट राउटर. सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ इम्प्लाइड राउटर हियर. ओके, इट्स अ राउटर, क्योंकि दोनों डिफरेंट सबनेट में है ना. तो मुझे यहाँ पे राउटर के साथ कनेक्टिविटी करना पड़ेगा. क्लियर? एंड वी हैव टू डिफाइन द रूट आल्सो. सो रूट टेबल मुझे डिफाइन करना पड़ेगा. सो रूट टेबल में आपको ये डिफाइन करना है कि मेरा रूट टेबल मैं दो बनाने वाला हूँ. एक रूट टेबल होगा पब्लिक सबनेट के लिए, और दूसरा रूट टेबल मैं क्रिएट करने वाला हूँ प्राइवेट सबनेट के लिए. ये मेरा इंटरनेट गेटवे है, जो इस तरह से कनेक्टेड है BPC के साथ, मैं अटैच करने वाला हूँ. मेरे सिनेरियो में कंडीशन क्या है, अभी रूट टेबल का सारा खेल यहाँ पे रूट टेबल का ही है कि किसको आप इंटरनेट दोगे और किसको इंटरनेट नहीं दोगे. क्योंकि रूट टेबल में आप जिस तरह से कॉन्फ़िगर करोगे उस तरह से उसको कनेक्टिविटी मिलने वाला है. रूट टेबल राउटर में ही क्रिएट करते हैं. वी आर गोइंग टू राउट इन अ राउटर. राउटर का नाम राउटर क्यों आया, बिकॉज इसको इसके अंदर लोग राउटिंग कर सकते हैं. इसको रूटर भी बोलते हैं कभी कभी. तो रूट टेबल में पहला ये पब्लिक सबनेट को डिफाइन करने वाले हैं, बिकॉज दैट रूट टेबल इज डेडिकेटेड टू दिस नेटवर्क, दिस सबनेट. ओके, सो मैं डिफाइन करने वाला हूँ पहले, या फिर बाय डिफॉल्ट ये डिफाइन हो जाएगा जब आप क्रिएट करोगे. अगर क्रिएट नहीं होता है बाय डिफॉल्ट तो आपको फिर करना पड़ेगा. सो इट्स लोकल. क्या है ये? लोकल. ये रूट टेबल के लिए ये नेटवर्क क्या है? लोकल नेटवर्क है. एंड आपको एक्स्ट्रा जो रूट करना पड़ेगा वो बताना पड़ेगा कि मैं इंटरनेट जाना चाहता हूँ. इंटरनेट मतलब मैं डिफॉल्ट राउटिंग करने वाला हूँ. किसके थ्रू से जाने चाहता हूँ? क्लियर? ये मैं क्यों किया हूँ ये रूट टेबल में कॉन्फ़िगर? क्या हुआ? सर मैंने भेजा, मुझे म्यूट कर लो. आप लोग समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ये रूट टेबल में मैं ये इंटरनेट गेटवे को डिफाइन किया हूं कि अगर इस नेटवर्क को बाहर जाना होगा तो वो बाहर मतलब इंटरनेट में जाना होगा. इंटरनेट, सो इट्स इंटरनेट. तो वो किसके पास जाएगा? इंटरनेट गेटवे. ठीक है, क्लियर? तो ये डिफॉल्ट राउटिंग में किया हो 0.0.0.0/0.
सो इट्स अ डिफॉल्ट राउटिंग। यस डिफॉल्ट राउटिंग कब करते हैं? जब एग्जिट करना पड़ता है किसी नेटवर्क से किसी और नेटवर्क में, जो मेरे अननोन पता है, नहीं रहता है सर। या फिर अंदर आना होता है कोई और नेटवर्क के अंदर। ओके, इट्स लाइक ए डायनामिक राउटिंग बट इट कॉन्फ़िगर लाइक ए स्टैटिक राउटिंग। इट वर्क्स लाइक ए डायनामिक बट कॉन्फ़िगर स्टैटिक। स्टैटिक राउटिंग जैसा ही करते हैं। क्लियर? जीरो मतलब एनीवेयर। यहाँ पे डिफॉल्ट जीरो का मतलब होता है एनीवेयर, कहीं पे भी मैं जाना चाहता हूँ, किसी भी आईपी में जाना है तो मैं उसको 0.0.0 से डिफाइन करता हूँ, 4 जीरो से डिफाइन करता हूँ। इसका मतलब हो गया कि मैं राउटर को क्या बोल रहा हूँ कि मुझे हर नेटवर्क में जाना है, एवरी नेटवर्क में मुझे जाना है। कैसे जाना है? गेटवे के थ्रू से। क्लियर? जब पब्लिक सबनेट आप बोलते हो तो पब्लिक सबनेट का सबसे बड़ा फीचर होगा क्या? जो भी EC2 इंस्टेंस क्रिएट करोगे उसको क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? क्लियर? जिस पब्लिक आईपी के थ्रू से डायरेक्टली वो बाहर जा सकता है गेटवे के थ्रू से। अब आते हैं प्राइवेट सबनेट को अगर आप कॉन्फ़िगर करोगे तो कैसे करोगे? राउटिंग टेबल किसके लिए? प्राइवेट के लिए। प्राइवेट सबनेट जब बोलोगे तो इसको कोई भी पब्लिक आईपी नहीं मिलने वाला। इसको कोई भी पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये प्राइवेट है। अगर पब्लिक आईपी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पब्लिक नेटवर्क हो जाएगा। क्लियर? नाउ अभी प्राइवेट के लिए आपको सेम लोकल के लिए डिफाइन करना है। लोकल नेटवर्क क्या है? प्राइवेट नेटवर्क का क्या है? अरे कुछ बोलो। इट्स अ लोकल। सो ये नेटवर्क जो देख रहे हो ये लोकल है ना, मतलब इस मशीन को इसी रेंज का आईपी मिलेगा और ये मशीन को इस रेंज का आईपी मिलेगा। तो ये रूट टेबल में डिफाइन कर दिया क्योंकि खुद का नेटवर्क है उसका, उसको पता है ना। देन अभी अगर आप इस EC2 इंस्टेंस को या फिर डेटाबेस सर्वर को बोलते हो कि नहीं इंटरनेट भी मुझे देना है इसको, मैं समझ, ये चीज को अच्छे से समझो। मैं जो बता रहा हूँ कि प्राइवेट नेटवर्क में है, इट्स आइसोलेटेड नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, इसमें किसी मशीन को पब्लिक आईपी नहीं मिला, लेकिन फिर भी चाहते हो कि आपको इंटरनेट मिलना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या कॉन्फ़िगर करना चाहिए? कैसे इंटरनेट दोगे? सिस्टम को प्राइवेट आईपी ही मिलेगा, पब्लिक आईपी नहीं मिलेगा, बट इंटरनेट उसको मिलेगा। यस, नेट। जैसे लैब में आप सिस्टम में देखो कि प्राइवेट आईपी है, 172.19 रेंज का आईपी है, बट इंटरनेट एक्सेस हो रहा है ना। कैसे हो रहा है? क्योंकि क्या कर रहा है? नेट कॉन्फ़िगर है मेरे यहाँ पे राउटर में। नेट क्या कर रहा है? नेट मेरा प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर दे रहा है और फिर पैकेट बाहर लेके जा रहा है। सो देयर इज नेट गेटवे। नेट गेटवे है वहां पे। समझ में आ रहा है? तो अगर आप DBMS सर्वर को इंटरनेट देना चाहते हो तो आपको क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। नेट को कहां पे प्लेस करना है? पब्लिक सबनेट में। ये हमेशा याद रखना है। नेट कहां पे रहेगा? काम किसके लिए करेगा? हाँ, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं कि प्राइवेट के लिए काम करें तो प्राइवेट सबनेट में डाल देंगे, ऐसा सोचते हैं, बट वो काम फिर नहीं कर पाएगा। उसको कहाँ पे रखना है? पब्लिक सबनेट में, है ना। कम करें मतलब क्या? अच्छा, गर्मी लग रहा है। तो ये आपका अगर नेट गेटवे है, इट्स अ नेट गेटवे, तो आपको पब्लिक सबनेट में ही डालना है उसको, हाँ? और फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, राउटिंग करना है कि ये प्राइवेट सबनेट अगर इंटरनेट जाना चाहता है तो किसके थ्रू से जाएगा? नहीं, नेट गेटवे के थ्रू से जाएगा। सिनेरियो समझ में आ गया सब? प्रैक्टिकली क्या करने वाले हम? नेट गेटवे का थ्योरी हुआ था सर आपसे 1 गीगाबीट चार्ज पर
नेट गेटवे का थ्योरी लगता नहीं होगा। नहीं हुआ है। तो नेट गेटवे तो का बेसिक कंसेप्ट में बता दूंगा। फिलहाल जान के रखो कि नेट गेटवे जब भी मैं कॉन्फ़िगर करूंगा उसको मैं प्लेस कहाँ पे करूंगा, और नेट गेटवे करने के लिए कुछ कंडीशंस है, इलास्टिक आईपी वगैरह, ये सब हम लोग बाद में बात करेंगे। ये सिनारियो सबको समझ में आ गया? अगर किसी को समझ में नहीं आया, कहीं पे भी डाउट्स है, एनी क्वेश्चंस दिमाग में अगर आ रहा है तो यू कैन आस्क, बिकॉज दैट्स अ वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ बीपीसी। ये आपको आगे चल के डेली करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार बीपीसी बनाने के बाद उसको रख नहीं सकते आप। रखोगे तो क्या होगा, बिल आएगा। आपको डेली डिलीट करना पड़ेगा, डेली क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये पहले समझ लेना है कि करना क्या है और क्यों कर रहे हैं। कोई भी चीज सीखने के लिए 2 सवाल का आंसर मेरे पास होना चाहिए। हाँ, कर क्यों रहे हैं, यकीन में आ रहे हो ना, क्यों आ रहे हो, इसका आंसर होना चाहिए। प्रैक्टिकल भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसका भी आंसर होना चाहिए। तो सेम चीज यहाँ पे है, ये प्रैक्टिकल हम लोग बीपीसी का कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। सही इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। हाँ, ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है यस। कंपनी में, तो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था मेरा, उसको हम लोग क्लाउड में लेके जा रहे हैं। क्लाउड तो क्लाउड में हम लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं वर्चुअली। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। जबकि हम लोग पब्लिक क्लाउड यूज कर रहे हैं। AWS इज ए टोटली पब्लिक क्लाउड, बिकॉज इसको दुनिया में कोई भी एक्सेस कर सकता है। बट बीपीसी के थ्रू से हम लोग इसको क्या क्रिएट कर रहे हैं, आइसोलेटेड नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, आइसोलेटेड है ना, एकदम सेपरेट। ये कोई भी बाहर का बंदा आके मेरे बीपीसी का मशीन को एक्सेस नहीं कर सकता, जो प्राइवेट सबनेट में है। क्लियर है? यहाँ पे हर कंसेप्ट क्लियर है, हर कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता है, समझ में आ गया। किसी का कोई सवाल नहीं है? ऑनलाइन में किसी का सवाल है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा जो था फिजिकल, ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं क्लाउड में लेके आया। किसी का कोई सवाल नहीं? तो मेरा सवाल एक है सब लोगों से कि मैं प्राइवेट नेटवर्क को भी इंटरनेट दे रहा हूँ और पब्लिक सबनेट को भी इंटरनेट दे रहा हूँ, तो दोनों को तो इंटरनेट मिल ही रहा है, तो फिर वो प्राइवेट क्यों है और वो पब्लिक क्यों है? सर प्राइवेट इसलिए क्योंकि हमको उसको बाहर से एक्सेस नहीं दिलाना है, बाहर से किससे बोलो, आउटसाइड वालों को एक्सेस ना करे, दैट्स व्हाई। बट इंटरनेट तो मिल रहा है। इंटरनेट मिल रहा है बाय नेट ना, नेट द्वारा इंटरनेट मिल रहा है, और उसका जो सबनेट है वो भी पब्लिक में रखा हुआ है। तो सर प्राइवेट इसलिए रखे कि कोई वो बाहर आउटसाइड से कोई उसका एक्सेस ना ले। अच्छा। और वैसे भी कितने आप- लोग सहमत करते हो उसके आंसर से? आप सहमत हो, बाकी लोग? सिक्योरिटी कैसे? प्राइवेट कहाँ रहा, उसको तो इंटरनेट मिल गया, नेट गेटवे में डाल दिया। बाय नेट, बट वो तो सर वो उसका तो subnet तो होल नेटवर्क तो आइसोलेटेड हो गया ना सर, बीपीसी के। क्यों, कैसे एक्सेस नहीं कर पाएगा? अब सवाल आता है क्यों नहीं कर पाएगा, सर क्यों आइसोलेटेड? बिकॉज नेट तो ट्रांसलेट कर रहा है आईपी को, तो पब्लिकली अगर वो आईपी अगर एक्सेस करने जाएगा तो वो पब्लिक में ठुक जाएगा, मतलब वो जो वेब सर्वर में ठुक जाएगा। हाँ, वेरी गुड, चलो क्लैप कर दो उसके लिए, बहुत अच्छा आंसर दिया। अभी प्राइवेट सबनेट हम लोग इसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज EC2 इंस्टेंस को प्राइवेट आईपी ही मिला है, पब्लिक आईपी नहीं मिला। मतलब अगर मैं इसको इंटरनेट देता भी हूं तो ये इस मशीन को बाहर से कोई यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास कोई पब्लिक आईपी है ही नहीं। ये कर सकता है, इसका पैकेट जब नेट के पास जाएगा, नेट इसको ट्रांसलेट कर देगा और भेज देगा बाहर। लेकिन बाहर का यूजर के पास जब आएगा, बाहर का यूजर जब एक्सेस करेगा इस मशीन को, कैसे करेगा? उसको तो पब्लिक आईपी सिर्फ पता है, नेट तक ही आ पाएगा, इसके अंदर कैसे आएगा? नहीं आ पाएगा। सो दैट इज द कंसेप्ट अबाउट नेट। इसलिए मैं यहाँ पे नेट डिफाइन कर रहा हूँ, इंटरनेट गेटवे डिफाइन नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? तो मैं जब यहाँ पे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, DBMS बनाऊंगा, मेरा DBMS सर्वर के पास इंटरनेट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट आ जाएगा। ये EC2 इंस्टेंस इस EC2 से कम्युनिकेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता?
Yes sir. क्यों कर सकता है? क्योंकि राउटर से कनेक्टेड है। हाँ, क्योंकि राउटर यहाँ पे लगाया ना, और रूट टेबल भी डिफाइन किए हैं हम लोग। क्लियर है? तो इसी चीज को हम लोग प्रैक्टिकली अभी करने वाले हैं AWS के अकाउंट में। AWS अकाउंट सबका बन गया? Yes sir. अभी मॉड्यूल 4 का एग्जाम था रया सर का बैच का, 346 बैच का। तो जिन लोगों का AWS अकाउंट नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं कर पाया, सब फेल कर गया। इसलिए आपको AWS अकाउंट क्रिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका मॉड्यूल 4 में 2 ही सब्जेक्ट है, रेड हैट और AWS। 2 प्रैक्टिकल AWS से दिया जाएगा और 2 प्रैक्टिकल रेड से दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट क्लियर है? इसको पिक्चर ये ड्रॉ कर लो कॉपी में, बिकॉज ये सेम चीज को हम लोग अभी करने वाले हैं। हाँ सर, अकाउंट हाँ, अकाउंट नहीं रहेगा तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे? हाँ, हो सकता है कि तुम 2 मिलके या 3 मिलके एक अकाउंट बनाओ, तीनों मिलकर के आपस में कर सकते हो। हाँ, किसी और का लेकिन अगर देगा सामने, हाँ वही ग्रुप में कर सकते हो प्रैक्टिकल, लेकिन एग्जाम के टाइम में अगर दुश्मनी हो जाए तो फिर नहीं मतलब एक टाइम पे 2 जन ओपन कर सकते हैं ना सेम अकाउंट। हाँ, तब ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इधर करूँगा। ठीक है, हो गया, बना लिए? चलो अब चलते हैं प्रैक्टिकल में। चले प्रैक्टिकल में? चलो मैं लॉगिन कर लिया। अभी मैं कौन सा रीजन में हूँ? मैं नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कौन सा रीजन में हो। ओके, आप यहाँ से अगर चेंज करना चाहो चेंज कर। मैं लास्ट डे मुंबई में कर रहा था, इशू आया था, नहीं क्रिएट करने दे रहा था, कुछ इश्यूज थे वहाँ पे रीजन में शायद। तो अभी हम लोग क्रिएट करते हैं VPC। सो नाउ अभी मैं इसका डैशबोर्ड देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट VPC एक ही दिख रहा है, सबनेट 6 दिख रहा है ना। यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट पहले से बना हुआ है, इसलिए हम लोग जब EC2 इंस्टेंस बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली इसको इंटरनेट मिल जाता है, क्योंकि हम लोग डिफॉल्ट VPC को यूज करते हैं उस टाइम। बट हम लोग डिफॉल्ट VPC अभी यूज नहीं करने वाले हैं, हम लोग कस्टम VPC यूज करने वाले हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे 6 सबनेट क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस रीजन का 6 सबनेट डिफॉल्ट है। 6 ही क्यों है सबनेट डिफॉल्ट? जोन की वजह से। हाँ, एबिलिटी जोन रीजन के अंदर क्या होता है? एबिलिटी जोन होता है। तो इस रीजन में 6 एबिलिटी जोन है फ्री में, इसलिए 6 सबनेट दिख रहे हैं। वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं VPC में। ओके, यहाँ पे एक डिफॉल्ट VPC दिख रहा है मुझे। हम लोग अपना VPC बनाएंगे, तो क्रिएट VPC किया। अभी VPC ओनली है, VPC मोर है। आप फिलहाल के लिए VPC ओनली करो। VPC मोर भी कर सकते हो, लेकिन VPC मोर करोगे तो आपको सारा कुछ अभी क्रिएट करना है, मतलब सबनेट वगैरह सब अभी देना है। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं, इस तरह से करना है। रूट टेबल भी अभी कॉन्फ़िगर करना है, ये भी सभी कुछ अभी पूछेगा। VPC मोड में क्लिक किया क्या? हाँ, VPC मोर में क्लिक। फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं अभी? VPC ओनली। अभी VPC का नाम डालो। लास्ट डे हम लोग क्या नाम डालते थे VPC का? अभी हम लोग नाम डालते VPC का 356। हमारा VPC है 356 नाम। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि VPC का CIDR क्या है? /60। तो 10.0.0.0/16। ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये हम लोग ऐसा ही सोचे हैं, हमारा VPC है, VPC का CIDR होगा ये, है ना। अभी /6 यूज नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्टेड रहेगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, टेनेंसी भी डिफॉल्ट रहेगा। बाकी टेनेंसी यूज करोगे तो आपका वहाँ पे चार्जेबल है, बिकॉज वो डेडिकेटेड है ना, चार्ज लगेगा उसका। अभी मैं क्या करूँगा? क्रिएट VPC मेरा क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं VPC क्रिएट है, जो क्रिएट किए हो वो यहाँ पे इसका समरी दिख रहा है। अभी आपको वापस चलना है योर VPC में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा आपका 356 VPC हाँ रनिंग है, बन गया है, जिसका सबनेट या CIDR है 10.0.0.0/60। क्लियर? VPC एक क्रिएट हो गया। ये देखो पूरा VPC मेरा बन गया, जिसका नाम है 356। अभी इसके अंदर हम लोग क्या बनाने वाले हैं? पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट। ठीक है,
पब्लिक सबनेट का नेटवर्क आईडी हम लोग क्या सोचे हैं, क्या होगा 10.0.10.0 और प्राइवेट का होगा 10.0.20.0। तो हम लोग 2 सबनेट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए कहाँ पे जाएंगे, नीचे में देखो सबनेट से, यहाँ पे 6 सबनेट पहले से बना हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले, हम लोग क्रिएट करेंगे, क्रिएट सबनेट। अभी पूछ रहा है आपको कौन सा बीपीसी में सबनेट बनाना चाहते हो, 356 पब्लिक, कौन सा बीपीसी में सबनेट क्रिएट करना है। यस, तो हम लोग क्या बीपीसी बनाए, तो हम लोग इस 356 बीपीसी के अंदर सबनेट क्रिएट करेंगे। नहीं तो कहाँ पे क्रिएट होगा, डिफॉल्ट में हो जाएगा, बट हम लोग अपना बीपीसी बनाए ना, उसी में बनाना है। क्लियर। तो ये बीपीसी का CIDR क्या था, यही डाले थे हम लोग। अभी पूछ रहे सबनेट का नाम क्या होगा, मैं सबनेट का नाम डाल दिया, बोल सो। ये सबनेट मेरा होगा एक लैब 7 का सबनेट, ठीक है, और ये सबनेट का नाम हो गया लैब 7। अभी एबिलिटी जोन ये पूछ रहा है कि एबिलिटी जोन कौन सा लेना चाहते हो आप, अगर अपने हिसाब से चूज करना चाहते हो। यहाँ पे 6 एबिलिटी जोन है, तो आप चूज कर सकते हो। अगर आप नो प्रेफरेंस करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली AWS खुद चूज कर लेगा ये। तो फिलहाल हम लोग रखते हैं नो प्रेफरेंस, वो अपने हिसाब से चूज करे जो भी है। अब आते हैं क्या, CIDR ब्लॉक क्या होगा, जो सबनेट क्रिएट कर रहे हो उसका CIDR ब्लॉक क्या होगा, सबनेट आईडी क्या होगा। तो क्या रखे थे हम लोग, 10.0.10.0/24। यस, तो वही डालते हैं यहाँ पे, 0/24 हो गया। तो ये सबनेट मेरा क्या है, लैब 7 सबनेट जो है वो किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, पब्लिक के लिए। इसलिए मैं पब्लिक लिख दिया, जिससे हमको समझ में आया कि कर लो। सर बोल रहे स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है, सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है, क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। अरे चलो दोबारा से करते हैं शेयर। एंटायर स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। सब दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, नहीं सर, नहीं, बाकी लोगों को दिख रहा है क्या, यस सर। तो अजय एक बार दोबारा से ज्वाइन करो। ओके सर, ओके रीजॉइन कर। अभी बीपीसी क्रिएट कर लिया, बीपीसी बोल रहे हैं, सबनेट क्रिएट कर लिया। सबनेट का नाम क्या है, लैब 7 पब्लिक। तो लैब 7 जो होगा वो पब्लिक सबनेट में होगा, मतलब यहाँ पे कोई भी सर्वर रखेंगे तो उसको पब्लिक आईपी मिलेगा और वो पब्लिकली कम्युनिकेशन कर सकता है। बाहर वाला अंदर जा सकता है, अंदर वाला बाहर जा सकता है। कर दिया, क्रिएट कर दिया सबनेट। जी सर, आप शो हो रहे हैं स्क्रीन। तो यहाँ पे एक मेरे को दिख रहा है लैब 7 सबनेट अवेलेबल दिख रहा है, और यहाँ पे बाकी सब कहाँ चला गया पता नहीं। अब आ गया। तो 6 और एक 7 हम अभी जो बनाए लैब 7, और ये डिफॉल्ट था। अभी दोबारा से एक सबनेट और बनाना है। क्यों बनाना है, बिकॉज एक सबनेट मेरा प्राइवेट होगा, तो मैं क्रिएट किया। और बीपीसी सिलेक्ट करना है, यहाँ से डिफॉल्ट बीपीसी नहीं करना, हम लोग खुद का बीपीसी सिलेक्ट करना है 356, और यहाँ पे सबनेट का नाम डालना है। तो ये सबनेट का नाम हो गया लैब 6, और ये मेरा प्राइवेट सबनेट है। यहाँ पे मेरा डेटाबेस सर्वर है, मतलब रखने वाले हैं हम। अभी CIDR क्या होगा इस सबनेट का, 10.0.20.0/24 हो गया। अब क्रिएट कर दो। वापस मेरा सिर्फ लैब 6 का सबनेट दिख रहा है, बाकी सबनेट नहीं दिख रहा है। देखो तो थोड़ा सा यहाँ पे इशू है, मतलब दिखता नहीं है। तो करना है कि आपको वापस बीपीसी में क्लिक करो, वापस सबनेट में क्लिक करो, फिर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो लैब 6 का जो सबनेट है वो कहाँ पे, कौन सा बीपीसी में है, 356 बीपीसी में है। लैब 7 का भी सबनेट है वो 356 बीपीसी में। ठीक, इसका मतलब मैं एक बीपीसी बनाया था जिसका नाम था 356, जिसके अंदर 2 सबनेट में क्रिएट किया। ये मेरा प्रैक्टिकल हो गया। अच्छा, अब चलते हैं
क्या करना है हम लोगों को? नेक्स्ट स्टेप में इंटरनेट गेटवे बनाना है ना? तो कहाँ से बनाएंगे? यहाँ पे देखो है ऑप्शन इंटरनेट गेटवे का, उसमें जाना है। एक डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे है, हम लोग अपना खुद का बनाएंगे। कैसे करेंगे? क्रिएट इंटरनेट गेटवे। गेटवे का नाम डाल दो। ये इंटरनेट गेटवे मैं क्रिएट कर रहा हूँ IGW for Jet King. So that is the name of the internet gateway. Okay. डाल दिया, क्रिएट कर दिया इंटरनेट गेटवे। चेक कर लो एक बार क्रिएट हुआ या नहीं। वापस इसमें क्लिक करो, ये आपको दिखेगा यहाँ पे। बट ये क्या दिख रहा है? डिटैच। तो डिटैच अगर है, इसका मतलब आपका बीपीसी के साथ वो कनेक्टेड नहीं है। तो अटैच नहीं करेंगे तो फिर वो बीपीसी को नहीं मिलेगा। तो कैसे करें? अटैच करेंगे, आपको चेक करना है, देन एक्शन में जाना है, देन अटैच टू बीपीसी। अब अटैच टू बीपीसी कर दिए। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा सेलेक्ट बीपीसी, कौन सा बीपीसी से करना है? तो हम लोग जो बीपीसी क्रिएट किया उसको सेलेक्ट करना है और फिर अटैच करना है। वापस जाना है और देखना है कि अटैच हुआ या नहीं। अभी दिख रहा है अटैच्ड है ना? हो गया मेरा इंटरनेट गेटवे भी कॉन्फ़िगर। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हम लोगों को? रूट टेबल कॉन्फ़िगर करना है। रूट टेबल्स में जाना है। तो हम लोगों का रूट टेबल यहाँ पे दिख रहा है क्या? हम लोग रूट टेबल बनाए ही नहीं तो कहाँ से दिखेगा? एक दिख रहा है 356। तो जब भी आप सबनेट क्रिएट करोगे तो एक रूट टेबल बाय डिफॉल्ट बन जाता है। ये दैट इज कॉल्ड मेन रूट टेबल, है ना? तो हम लोग इसमें नहीं जाते। हाँ, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट हम लोग अपना खुद का रूट टेबल क्रिएट करेंगे। रूट टेबल हम लोग दो बनाएंगे। क्यों दो बनाना है? एक रूट टेबल हम लोग बनाने वाले हैं पब्लिक सबनेट के लिए और दूसरा रूट टेबल क्रिएट करने वाले हैं प्राइवेट सबनेट के लिए। चलो, तो कैसे करेंगे? क्रिएट रूट टेबल। अभी रूट टेबल का नाम डाल दो। जैसे मैं इसका नाम डाल दिया कि ये रूट टेबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ पब्लिक सबनेट के लिए, तो पब्लिक रूट 8 टेबल। अब ये कौन सा बीपीसी के लिए कर रहे हैं? 356 बीपीसी को चूज कर लो और फिर यहाँ पे क्रिएट कर दो। तो आपका रूट टेबल एक क्रिएट हो गया जिसको आप लोग बनाए पब्लिक। दूसरा रूट टेबल क्रिएट करने वाले हैं किसके लिए? प्राइवेट। तो इसका नाम डालते हैं प्राइवेट रूट टेबल। ये भी उसी बीपीसी के अंदर बनने वाला है 356 के अंदर। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रिएट। तो हमारा दो रूट टेबल बन गया। अभी आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि रूट टेबल में आपको किस तरह से नेटवर्क एसोसिएट करोगे या सबनेट एसोसिएट करोगे। কত নম্বর চাই? 53A नहीं এখানে 53 है। तो ये दो रूट टेबल है, एक पब्लिक रूट टेबल है और ये दूसरा प्राइवेट रूट टेबल है। अभी आप जिस रूट टेबल को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं उस रूट टेबल को आपको सेलेक्ट करना है। कैसे? ये क्लिक करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स में सेलेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? सेलेक्ट हो गया। अभी अगर पब्लिक रूट टेबल में हम आते हैं तो पब्लिक रूट टेबल में मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा? मुझे ये एसोसिएट करना पड़ेगा मेरा इस रेंज को या बीपीसी को। अगर ये लोकल रेंज ऐड किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐड नहीं है तो ऐड करना है। ठीक है? कैसे करें? पब्लिक रूट टेबल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद जाना है सबनेट एसोसिएट। कहाँ पे आना है? सबनेट एसोसिएट। अगर आपको नीचे में नहीं दिख रहा है तो ये बटन जो है, ये बटन में क्लिक करो, आपको दिखेगा पूरा नीचे में। तो यहाँ पे एसोसिएट में मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करने वाला हूँ? एडिट सबनेट एसोसिएट्स। अभी यहाँ पे दो सबनेट दिख रहा है मुझे, एक लैब 6 प्राइवेट और दूसरा लैब 7 प्राइवेट। तो आप किसको सेलेक्ट करोगे यहाँ पे? प्राइवेट को। मैं कौन सा रूट टेबल में हूँ? पब्लिक में। पब्लिक ये मैं रूट टेबल में हूँ।
हाँ, तो तो एसोसिएट क्या करना है आपको? खुद का, लोकल मतलब खुद का। खुद का, हाँ, तो प्राइवेट बोल रहे हो तो? नहीं पब्लिक, पहले तो खुद पब्लिक, और कुछ नहीं करना है। मैं फर्स्ट डे या सेकंड डे बताया था, जब राउटर आपका लोकल है और उसी राउटर का इंटरफेस आप ऐड करते हो, दो अलग अलग नेटवर्क बनाते हो, तो राउटिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज वो खुद का नेटवर्क, सिर्फ नेटवर्क डिफाइन करने का एडवर्टाइज कर रहा है। ठीक है, खुद का नेटवर्क, तो खुद का नेटवर्क डिफाइन कर दिया, ये पब्लिक का है, सेम एसोसिएशन कर दिया। अभी देखो मेरा एसोसिएशन यहाँ पे कहाँ गया? हाँ, सबनेट एसोसिएशन के अंदर आ गया मेरा, दिख रहा है? ये बस यही करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ। सबनेट एसोसिएशन में बस अपना ही रूट डिफाइन करना है, मतलब अपना ही नेटवर्क डिफाइन करना है, लोकल नेटवर्क। लोकल नेटवर्क अगर पब्लिक में हो तो पब्लिक नेटवर्क डिफाइन करना है, मतलब पब्लिक का खुद का नेटवर्क आईडी डिफाइन करना है, सबनेट आईडी डिफाइन करना है। अगर प्राइवेट सबनेट कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो प्राइवेट का सबनेट आईडी एसोसिएट करना है। एसोसिएशन करने के टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे हो उसी को एसोसिएट करना है, किसी और को नहीं। क्लियर? सिनारियो देखो यहाँ पे फिर से दोबारा से, मैं जब ये पब्लिक सब रूट टेबल कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ तो ये नेटवर्क में डिफाइन किया, लोकल नेटवर्क मेरा क्या है 10.0.10.0/24, तो ये मैं खुद का ही डिफाइन कर रहा हूँ ना। क्या? और जब मैं प्राइवेट में करूंगा तो सेम मुझे करना है, लोकल खुद का 10.0.20.0, देखो यहाँ पे लिखा है 10.0.20.0। क्लियर? ये सबको समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं। उसके बाद आपको कहाँ पे आना है? नेक्स्ट, उसके पहले एक टैब मिलेगा रूट्स बोल के, जहाँ पे आपको राउटिंग करना है। तो अभी मैं पब्लिक कौन सा सबनेट सेलेक्ट किया हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं पब्लिक रूट टेबल में हूँ, है ना? पब्लिक रूट टेबल में हूँ अभी। ये पब्लिक रूट टेबल का ये पूरा ये प्रॉपर्टीज है। तो पब्लिक रूट टेबल में रूट डिफाइन करना है। अभी रूट डिफाइन करना है मतलब ये वाला रूट डिफाइन करना है, यहाँ पे ये इंटरनेट गेटवे को, क्योंकि ये पब्लिक सबनेट में इतने सारे सिस्टम्स है, EC2 इंस्टेंसेस है, कंप्यूटर्स है, वो अगर इंटरनेट में आना चाहता है तो कहाँ पे जाएगा? गेटवे के पास जाएगा। यहाँ पे इंटरनेट मतलब होता है 0.0.0.0/0। तो ये आपको राउटिंग करना है, तो राउटिंग करने के लिए रूट्स में आना है। कौन सा टैब में आना है? रूट्स में। क्लियर? पब्लिक सबनेट सेलेक्टेड, पब्लिक राउटिंग टेबल के अंदर रूट्स के अंदर आना है, और फिर यहाँ पे एडिट रूट्स करना है। एडिट रूट्स और फिर हाँ, उसी में थे हम लोग, अभी तक उसी में है, पब्लिक रूट टेबल में ही है। अभी हम लोग सबनेट एसोसिएट किए, उसके बाद फिर रूट्स में आए, उसके बाद एडिट रूट्स किए। यहाँ पे पहले से लोकल रूट डिफाइन किया हुआ, अभी हम लोग को ऐड रूट करना है। और मुझे कौन सा राउटिंग करना है? डिफॉल्ट राउटिंग। किसके थ्रू से जाएगा मेरा? गेटवे के थ्रू से। कौन सा गेटवे के थ्रू से? इंटरनेट गेटवे के थ्रू से। इंटरनेट गेटवे का नाम क्या है? इंटरनेट गेटवे जिटकी। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे आ जाएगा, सब माउस क्लिक से हो जाएगा, और सेव कर देना है। तो यहाँ पे आपको रूट में दिखेगा कि आपका लोकल रूट भी डिफाइन हो गया और इंटरनेट गेटवे भी डिफाइन हो गया फॉर डिफॉल्ट राउटिंग। क्लियर? ये मेरा पब्लिक रूट कॉन्फ़िगर हो गया, मतलब रूट टेबल। अभी मुझे इसको अनचेक कर देना है। अभी हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले हैं प्राइवेट रूट टेबल। प्राइवेट रूट टेबल में चलते हैं, सबनेट एसोसिएशन के अंदर जाना है, सेम प्रोसेस। सबनेट एसोसिएशन, एडिट सबनेट एसोसिएशन, और यहाँ पे आपको क्या लेना है? क्या लेना है? प्राइवेट है तो प्राइवेट ही लेंगे, लैब 6 प्राइवेट। उसके बाद सेव एसोसिएशन कर देना है। रूट्स में आना है, एडिट रूट्स में आना है। बट नेट अभी तक बनाया नहीं हम लोग, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। फिलहाल हम लोग इंटरनेट नहीं देते हैं, है ना? इंटरनेट बाद में देंगे। सो हम लोग नेट को छोड़ के बाकी सारा प्रैक्टिकल कर चुके हैं।
अभी हम लोग को EC2 इंस्टेंस बना के चेक करना है कि सही में मेरा प्रैक्टिकल हम लोग जो कर रहे थे, ये पब्लिक सबनेट में हो रहा है, ये प्राइवेट सबनेट में हो रहा है, इसको इंटरनेट मिलेगा, इसको रिमोट डेस्कटॉप कर सकते हैं बाहर से, इसको रिमोट डेस्कटॉप बाहर से नहीं कर सकते, वो चेक करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर बाहर बैठा हूँ, मैं अभी, ये तो मेरा वर्जीनिया में है, US में, और मैं अभी इंडिया कोलकाता में बैठा हूँ, मैं रिमोट डेस्कटॉप करना चाहता हूँ, रिमोट डेस्कटॉप किसको, इस मशीन को कर पाएंगे? नहीं। 100% कर पाएंगे। पब्लिक है, उसको एक्सेस मिला हुआ है। अच्छा, इसको कर पाएंगे? नहीं नहीं कर वो भी पाएंगे। करने देंगे, उसमें नहीं होगा। नहीं होगा। प्राइवेट में एक्सेस तो कैसे प्राइवेट मिलेगा? तो हम बोल, उसमें जाएंगे तो उसमें घुस जाएंगे। अच्छा, अब चेक करना है। चलो, जो हम लोग बोल रहे हैं सही में ऐसा होगा क्या, देखते हैं। नाउ लेट्स मूव टू EC2। अब चलते हैं सिस्टम क्रिएट करना हम लोगों को है अभी। तो सिस्टम कैसे क्रिएट करेंगे? EC2 में जाएंगे, ये दैट इज द डैशबोर्ड ऑफ EC2, जहाँ से हम लोग EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं विंडोज का। आप चाहो तो लिनक्स का भी कर सकते हो। चलते हैं लॉन्च इंस्टेंस में, लॉन्च इंस्टेंस, और स्टार्ट करते हैं EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करना है यहाँ पे। तो पहले हम लोग बनाते हैं क्या, पहले हम लोग ये EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं जो वेब सर्वर होगा और जो पब्लिक सबनेट में होगा, ठीक है, जिसको पब्लिक IP मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, आपका सर्वर का नाम डालना है। जैसे मैं इस सर्वर का नाम डाल दिया वेब सर्वर, और मैं विंडोज लेने वाला हूँ, विंडोज को चूज कर लिया। विंडोज में फ्री टायर अकाउंट जो है हमारा, फ्री टायर अकाउंट, फ्री टायर सिस्टम्स है T2, उसी को लेंगे, बिकॉज बाकी सब वो चार्जेबल है। तो मैं 2029 ही लेता हूँ। चलो 2029 बेस, इट्स अ फ्री टायर एलिजिबल, चूज कर लिया। है ना। EC2 इंस्टेंस पहले भी हम लोग 2-3 बार बनाए हैं, और इसके बाद हम लोगों को की जनरेट करवाना है। सो क्रिएट अ न्यू की पेयर, और मैं की का नाम डाल दिया। की का नाम है KK 356 की, और इसको मैं न्यू की करके कर रहा हूँ, और इसका नाम डाल देते हैं की, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। सो क्रिएट की पेयर, जब क्रिएट करोगे तो डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इससे डाउनलोड इन माय डाउनलोड्स, है ना। ये देखो यहाँ पे कहाँ पे डाउनलोड होगा, डाउनलोड्स के अंदर डाउनलोड होगा, अगर आप डाउनलोड का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट डाउनलोड्स को चूज करके रखे हो, ठीक है। ये बाद में लगेगा जब हम लोग सिस्टम का पासवर्ड निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये ऑप्शन में हम लोग पहले डायरेक्ट लॉन्च इंस्टेंस कर देते थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर आपको एडिट करना है। बिकॉज आप अगर एडिट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली ये डिफॉल्ट VPC के अंदर क्रिएट होगा। बट हम लोग डिफॉल्ट VPC में नहीं बनाना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि कस्टम VPC के अंदर बने। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको, इस ऑप्शन को एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद डिफॉल्ट को चेंज करके हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो VPC है उसको चूज करेंगे 356। अभी VPC तो चेंज कर दिया, अभी सबनेट भी चेंज करना पड़ेगा। तो सबनेट आपको किस में करना है, प्राइवेट में करना है मशीन को, या फिर पब्लिक में करना है। तो ये ड्रॉप डाउन बटन है, ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करो, और यहाँ से आप चूज करोगे कहाँ पे करना है, कौन सा सबनेट में ये EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा। कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, लैब 7 में कर रहे हैं, क्योंकि लैब 7 मेरा पब्लिक है। तो ये EC2 इंस्टेंस कहाँ पे क्रिएट होगा, पब्लिक सबनेट में। पब्लिक सबनेट में अगर होगा तो उसको पब्लिक IP भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है, ऑटो असाइन पब्लिक IP, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। तो यहाँ पे आपको इनेबल करना है, नहीं तो फिर उसको पब्लिक IP नहीं मिलेगा। तो इसको मस्ट क्या करना है आपको, इनेबल, ये ध्यान रखना है। क्लियर? क्यों इनेबल कर रहे हैं, बिकॉज ये EC2 इंस्टेंस पब्लिक सबनेट में क्रिएट हो रहा है, और इस EC2 इंस्टेंस को पब्लिक IP मिलना चाहिए। हो गया। सिक्योरिटी ग्रुप ये क्रिएट हो रहा है, जिसका नाम है लॉन्च विजार्ड 1। आप ना चाहो तो नाम को चेंज भी कर सकते हो।
इस सिक्योरिटी ग्रुप में आरडीपी अलाउ है बाय डिफॉल्ट, आरडीपी के थ्रू से एक्सेस करेंगे इसलिए आरडीपी अलाउ है। आपको लगता है कि कुछ और सर्विस अलाउ करना है, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो बाय डिफॉल्ट हर सर्विस को ब्लॉक करता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ अलाउ ही करना है, डिनाई करने का ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि वो सब डिनाई है। जैसे आप अगर बनाना चाहते हो वेब सर्वर इस मशीन को, तो यहाँ पे आपको 2 सर्विस को अलाउ करना पड़ेगा। क्या क्या? एक अलाउ करना है HTTP को, HTTP को कोई भी एक्सेस कर सकता है एनीवेयर, और दूसरा अलाउ करता है HTTPS को, HTTPS को कोई भी एक्सेस कर सकता है फ्रॉम एनीवेयर। अगर आगे चल के वेब सर्वर बनता है तो, इसलिए मैं करके रखा हूं। उसके बाद आपको बाकी सब कुछ नहीं करना है, जो डिफॉल्ट रहने दो। अब लॉन्च इंस्टेंस करो। अभी जो मेरा इंस्टेंस क्रिएट होगा, EC2 इंस्टेंस सर्वर का मशीन जो क्रिएट होगा, देखो यहाँ पे इंस्टेंस एक दिखा रहा है, रनिंग दिखा रहा है मुझे, है ना। वो कहाँ पे क्रिएट होगा? वो आपका पब्लिक सबनेट में क्रिएट होगा। कहाँ पे क्रिएट होगा? पब्लिक सबनेट में। क्लियर? ये आप अगर देखोगे कि इसको पब्लिक आईपी मिला है, ठीक है। और अगर आप इसका समरी देखोगे या फिर आप इसका प्रॉपर्टीज देखोगे, चेक करोगे ना मशीन को, तो ये आपको दिखाएगा यहाँ पे कि पब्लिक आईपी ये मिला है और ये प्राइवेट आईपी मिल रहा है 10.0.10.45, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट DHCP सर्वर होता है, ऑटोमेटिक आईपी मिलता है। तो 10.0.10.45 मतलब ये कहाँ पे क्रिएट हुआ है? इस यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इस सबनेट में। देखो इसी रेंज में मिल रहा है, 10 रेंज पे, है ना। BPC अगर चेक करना है तो BPC देख सकते हो, दैट इज ए BPC ID। थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे दिखाएगा आपको। सो दैट इज ए BPC ID जो 356 में क्रिएट हुआ है। क्लियर? अगर आप सबनेट चेक करना चाहते हो सबनेट देख लोगे, देख सकते हो कि ये पब्लिक सबनेट में क्रिएट हुआ है। मतलब अगर कोई पूछता है, क्रॉस करता है कि कैसे समझेंगे कि ये मशीन कहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो आप यहाँ से जाकर के दिखा सकते हो प्रॉपर्टीज में जाकर, ठीक है, चेक करने के बाद। अब इस मशीन को आप तभी एक्सेस कर पाओगे जब इसका स्टेटस चेक में 2x2 पास होगा। अभी क्या दिखा रहा है? इनिशियलाइजिंग। तो आप रिफ्रेश करोगे, ये लगभग 2-3 मिनट लगता है इसको, मतलब मशीन को रेडी होने में। मशीन अभी ऑन हो रहा है, बिकॉज सर्वर का सिस्टम लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तब तक हम लोग दूसरा मशीन भी क्रिएट करते हैं। जो मशीन कहाँ पे क्रिएट होगा? डेटाबेस सर्वर बनाएंगे। कहाँ पे बनेगा? पब्लिक का तो बन गया, एक मशीन हम लोग बनाते हैं प्राइवेट में, ये वाला मशीन, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे? सिंपल है, जाना हम लोगों को वापस इंस्टेंस में, और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करना है। इस मशीन का नाम डालते हैं हम लोग DB सर्वर, जिससे हम लोगों को समझ में आए कि क्या मशीन बन रहा है। इसको भी हम लोग बनाते हैं विंडोज मशीन, और इसका हम लोग लेते हैं 2019 लेते हैं, 2016 में ले सकते हैं, 2016। चलो, ये भी फ्री टायर ही है। सेम वे में आपको करना है। आपको की पेयर आपको क्रिएट करना है नया, आप नया क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर की पेयर है विंडोज के लिए तो सेम की पेयर को भी यूज कर सकते हो। ये भी मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देता है अमेज़न वेब सर्विस। हेलो, क्या हुआ? ध्यान की तरह। तो कैसे यूज करना है एग्जिस्टिंग को? यहाँ पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे हम लोग पहले से एक की पेयर बना के रखे हैं। आप इसी को यूज करना चाहते हो, इसी को यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। आपको नया से की पेयर बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज बोथ आर विंडोज मशीन। अभी नेटवर्क सेटिंग्स में क्या करना है? एडिट करना है या नहीं करना है? एडिट करना है, और डिफॉल्ट VPC हटा के हमको अपना VPC का 356 VPC को लेना है। सबनेट मुझे प्राइवेट लेना है या पब्लिक लेना है? प्राइवेट लेना है। अच्छा, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एनेबल करना है, डिसेबल करना है? इनेबल करना है। कौन कौन बोलता है एनेबल करना है? यहाँ तो नेट से कॉन्फ़िगर होगा। अच्छा हाँ, प्राइवेट से तो नेट कॉन्फ़िगर होगा, तब नहीं डिसेबल ही रहेगा। मतलब हमारा ऐसा कंडीशन था कि ये जो मतलब
प्राइवेट नेटवर्क है, ये काफ़ी सिक्योर नेटवर्क है, वो आइसोलेटेड नेटवर्क है, इसको बाहर से कोई भी एक्सेस ना कर पाए। अगर पब्लिक आईपी दे देंगे तो वो एक्सेसिबल हो जाएगा, है कि नहीं? हम लोग को पब्लिक आईपी नहीं देना है, पब्लिक आईपी डिसेबल ही रखना है यहाँ पे, ठीक है। और सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा, ये लॉन्च 2 बोल के आरडीपी अलाउ किया है। आपको लगता है कि और भी सर्विस अलाउ करना है, आप अलाउ कर सकते हो, जैसे HTTP को अलाउ करना चाहते हो अलाउ कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं लॉन्च इंस्टेंस कर देता हूँ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है अभी तक, समझ में आ गया? एक एक स्टेप को आप जब क्लिक करोगे तो पहले समझोगे कि मैं करना क्या चाहता हूँ, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है ना। सिनारियो को एक बार देख करके ही करना है, सिनारियो चेक करके ही करना है। ये मेरा EC2 इंस्टेंस, पहले वाला वेब सर्वर का EC2 इंस्टेंस 2x2 चेक पास कर गया, मतलब रेडी हो गया। बट अभी जो मराया मशीन जो मेरा कहाँ पे क्रिएट हुआ है, वो पब्लिक सबनेट में क्रिएट हुआ है, प्राइवेट में क्रिएट हुआ है? प्राइवेट में देखो 10.0.20 रेंज का IP मिला है, 20.24 20 मतलब ये वाला नेटवर्क में क्रिएट हुआ है। इसको पब्लिक IP नहीं मिला, यहाँ पे पब्लिक IP का ऑप्शन में कुछ भी नहीं आ रहा है। ये जो BPC है 356 में क्रिएट हुआ है और ये प्राइवेट सबनेट में क्रिएट हुआ है। क्लियर? अब करना क्या है, अब एक्सेस करना है मशीन। तो एक्सेस कैसे, कौन सा मशीन को एक्सेस करोगे आप पहले? अच्छा, इस मशीन को मैं एक्सेस कर पाऊंगा क्या? वेब सर्वर को इस मशीन को मैं यहाँ से बैठ करके, मैं अभी कोलकाता में हूँ, इधर मैं कोलकाता में बैठा हूँ इधर, और ये मशीन नॉर्थ वर्जीनिया का एवरेडी जोन में है। इस मशीन को मैं एक्सेस कर सकता हूँ थ्रू RDP? नो सर, प्राइवेट वाला नहीं, प्राइवेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो आपको अगर करना हो तो क्या करोगे? अभी तो बोले नेट करके भी नहीं होगा, जैसे तो बोल रहा था सब क्लैपिंग किए, क्या सर बात याद नहीं है कि नेट करने के बाद भी मेरा प्राइवेट नेटवर्क में वो नहीं आ सकता, बिकॉज उसको तो पब्लिक आईपी मिल नहीं रहा, अभी तो डिसेबल ही है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है, थोड़ा सा बीच बीच में क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं ना। हाँ सर, अच्छी बात है। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं इस EC2 इंस्टेंस को यहाँ से बैठ के, मैं तो अपने लिए मशीन बनाया ना, हाँ मैं अपने लिए सिस्टम बनाया, मैं एक्सेस करूंगा, मुझे एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा एक्सेस? प्राइवेट IP से। सर कल तो टाटा कॉलेज को इससे पब्लिक कोई नहीं नहीं, लगा, बिल कर देंगे तो लेकिन एक्सेसिबल हो जाएगा, तो फिर वो सिक्योर नहीं रहा। सिक्योरिटी रहेगा। बोलो हेलो। वैसे पब्लिक आई, जो पब्लिक और प्राइवेट तो अपने में कम्युनिकेशन करेगा, जब आपको एक्सेस करना है तो आप पब्लिक से कर सकते हैं। वेरी गुड, क्लैप कर दो फिर दोबारा उसकी। एक ही आदमी आंसर कर रहा है, सही आंसर है सर। वो क्या बोला, बोलो तो क्या बोला, समझ में आया कुछ किसी को? तो वो जो ऊपर वाला मशीन इसी वेब वाला, जो वेब वाला जब खुद से करना तो वेब से ही नहीं, बैच नंबर नहीं पता। 356 जो 10.0.10 वाला है। दोबारा से बोलो समझा के, सर खड़े होके हाँ? ऐड करके बनी समझ में आ गया? बोलो आकाश बोलो। सर वो दोनों का EC2 मशीन कनेक्टेड है तो एक ही राउटर से, हाँ तो इसलिए हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो कहाँ से? उस राउटर से कनेक्ट कर पाएंगे, वो जो कनेक्टेड जो राउटर है। नहीं, मुझे यहाँ पे अपना सिस्टम में, मैं मेरा ये फिजिकल मशीन है ना, मैं यहाँ से एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा इस मशीन को? वो आंसर दिया है, लेकिन कैसे करेंगे? तो हम तो पब्लिक आईपी को कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, इसको तो ऐड कर पाएंगे। हाँ, तो उस मशीन से तो प्राइवेट को उस राउटर से कनेक्टेड है। वेरी गुड। तो इसलिए हम उस राउटर के थ्रू कनेक्ट कर, आई थिंक। हाँ, राउटर के थ्रू से कर पाएंगे, बट करेंगे कैसे? जा रहे थे ठीक तुम, फिर रास्ते में कहीं गुम हो गए। और कोई बताएगा? यहाँ तक आप ठीक बोले कि यहाँ इस मशीन को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। सर इंटरनेट जब हम उसको एक्सेस कर पाएंगे तो इसको भी देखो, सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों नेटवर्क तो आपस में कनेक्टेड है। आपस में कनेक्टेड है।
मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं थोड़ा सा दिमाग ये लगाऊंगा कि मैं पहले अपना पब्लिक वाला मशीन को एक्सेस करूंगा। पब्लिक का जो थ्रू से जो प्राइवेट कनेक्ट है उसको एक्सेस कर लो। पब्लिक वाले को एक्सेस कर लिया, मेरा सर्वर एक्सेस हो गया। अभी सर्वर से बैठ करके मैं इस मशीन को एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि ये मशीन तो कनेक्टेड है। सर्वर कनेक्टेड। यहाँ से बैठ करके मैं इस मशीन को आरटीपी के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ ना। हाँ सर, ये तो दोनों मतलब कनेक्टेड है राउटर के थ्रू से। मेरे को पब्लिक नेटवर्क में नहीं दे रहा है एक्सेस करने के लिए, लेकिन आपस में तो कम्युनिकेशन कर सकता है। दोनों तो प्राइवेट आईपी। मतलब आरटीपी को थ्रू से वापस उसके अंदर जाकर के वापस आरटीपी के थ्रू से दूसरे मशीन की एक्सेस कर सकते हैं। जब समझ पब्लिक को एक्सेस ले चुके हैं, मैं करके दिखाता हूँ। चलो तो सबसे पहले हम लोग पब्लिक वाले को करेंगे। पब्लिक मशीन कौन सा है पब्लिक नेटवर्क में जिसको पब्लिक आईपी मिला हुआ है? ये वाला। हाँ, तो वेब सर्वर में चलते हैं पहले और क्या करते हैं? कनेक्ट। और उसके बाद कहाँ पे आना है? आरडीपी क्लाइंट में आना है और क्या करेंगे? डाउनलोड आरडीपी डेस्कटॉप फाइल डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड हो गया। अभी क्या करना है? गेट पासवर्ड करना है और जो पासवर्ड जो हम लोग की जनरेट किए थे प्राइवेट की, उसकी को यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? डिक्रिप्ट पासवर्ड। पासवर्ड भी आ गया। पासवर्ड को कॉपी कर लिया। अभी मेरा आरडीबी फाइल में डाउनलोड किया हूँ, इसको मैं ओपन करूंगा और क्या करेंगे? कनेक्ट। ये मुझे पासवर्ड पूछेगा, यहाँ पे मैं कॉपी करके रखा, मैं पेस्ट कर दूंगा। ये जो मशीन एक्सेस मैं कर रहा हूँ ये मशीन पब्लिक सबनेट में है। ये पब्लिक आईपी के थ्रू से हो रहा है, है कि नहीं? और एक्सेस हो गया। इस मशीन को पूरा एक्सेस है, टू वे कम्युनिकेशन कर सकता है। इस मशीन को कोई अगर चाहे तो बाहर से भी एक्सेस कर, जैसे मैं एक्सेस किया हूँ, कोई और चाहे तो एक्सेस कर सकता है। मैं अगर मशीन को वेब सर्वर बनाना चाहता हूँ तो वेब सर्वर भी बन सकता है, बिकॉज इसको पब्लिक आईपी मिला हुआ है। স্যার এই মেশিনে এসে তারপর আরডিপি ক্লায়েন্ট করে ওই মেশিনটা। हाँ, अभी ये मुझे अगर करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं। इस मशीन से मैं प्राइवेट वाले मशीन को एक्सेस कर सकता हूँ। हाँ सर, इधर तो आरडीपी है ना? इतना सिक्योर वो नेटवर्क है कि उस नेटवर्क को में आप बाहर से अंदर आ ही नहीं सकते। क्लियर? यस सर, विंडोज आते ये देखो इस मशीन को इंटरनेट मिल गया। मिल गया। मतलब इस मशीन से आप तो इंटरनेट कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं दिखाता हूँ पिंग करके, पिंग स्पेस google.com। आगे रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब कनेक्टिविटी है। यस सर। अच्छा, अभी मैं अगर अपना EC2 इंस्टेंस जो मेरा EC2 इंस्टेंस जो यहाँ पे है, इसको मैं अगर एक्सेस करना चाहता हूँ ये DBMS सर्वर को, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा? मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता यहाँ से बैठ। मैं इस मशीन को एक्सेस कर लिया, इस मशीन से मैं एक्सेस करूँगा, इस मशीन से मेरा एक्सेस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। और रूट टेबल में मेरा कॉन्फ़िगर है, राउटर भी कॉन्फ़िगर है। ये राउटर है, ये वाला कनेक्टेड राउटर कनेक्ट कर दिया तो करके देखते हैं दूसरे वाले EC2 इंस्टेंस को। कहाँ से? ये वाला पीसी से, ये वाला पीसी से, ये वेब सर्वर से। तो वापस चलते हैं अमेज़न का इंस्टेंस में और यहाँ पे मेरा DB सर्वर है, इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। तो DB सर्वर भी मेरा रेडी हो गया, 2x2 चेक पास कर गया। अब इसको चेक करते हैं और कनेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए आ रहा हूँ बिकॉज मुझे पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड इसका चाहिए ना, दोनों का पासवर्ड सेम थोड़ी ना होगा, दोनों अलग मशीन है। मुझे ये डाउनलोड नहीं करना है, मुझे क्या चाहिए? पासवर्ड चाहिए। ये गेट पासवर्ड में आना है और वो मैं सेम की यूज किया था, वही की मैं यूज करने वाला हूँ। और फिर मैं क्या करूँगा? डिक्रिप्ट पासवर्ड। पासवर्ड आ गया। अब इसको कॉपी कर लो। अब यहाँ से हम लोग मेरा जो इंस्टेंस है पब्लिक सबनेट में दिख रहा है, ये पब्लिक सबनेट वाला इंस्टेंस है। यहाँ पे मैं क्या ओपन करने वाला हूँ? रिमोट डेस्कटॉप। यहाँ पे सर्विस है ना, विंडोज को तो इनबिल्ट सर्विस है। इसको कैसे ओपन करते हैं? शॉर्टकट क्या है ओपन करने? MSTSC आ गया। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। यहाँ पे कंप्यूटर का IP डाल दो। IP क्या है? 10.0.20.0 10.0.20.20
20 है, 24 है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या है आईपी। हाँ सर 24 ये देखो आईपी, हाँ सर 24। ये प्राइवेट आईपी है, ये तो पब्लिक आईपी है नहीं। उसको क्या करना है, करेक्ट। अभी मुझसे पूछेगा यूजर नेम पासवर्ड, मेरे ख्याल से अगर सब कुछ सही चल रहा है। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। मैं क्यों एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहा हूँ, बिकॉज आप यहाँ पे देखोगे लिखा है यूजर नेम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और उसका पासवर्ड ये है। मैं पासवर्ड कॉपी कर चुका हूँ, अब यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, कंट्रोल भी पेस्ट करना है। ओके यस। अभी उस मशीन के अंदर एक और मशीन में ठीक है। अभी देखो यहाँ पे IP 10.0.20.24, अभी इस मशीन के अंदर मैं हूँ। इस मशीन को इंटरनेट नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या? नहीं सर, करेंगे तो मिलेगा। नहीं मिलेगा। चेक कर लेते हैं। सो ये सिस्टम है मेरा, वो सिस्टम जो प्राइवेट नेटवर्क में बना हुआ सिस्टम है, इसको हम लोग डेटाबेस सर्वर बोल रहे हैं। और इसमें देखो यहाँ पे ऐसा आ रहा है स्क्रीन, यहाँ पे भी दिखेगा IP, अभी थोड़ा देर बाद आ जाएगा, कुछ देर बाद। फिर मैं चेक कर लेता हूँ पिंग करके, वापस मैं पिंग करता हूँ google.com को। हो रहा है पिंग? नो सर, नहीं, बिकॉज इसको इंटरनेट नहीं दिए हम लोग, अभी इंटरनेट देना है, नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसके लिए। और इंटरनेट मिलने के बाद भी आप बाहर से एक्सेस नहीं कर पाओगे। जैसे आप पब्लिक सबनेट वाला मशीन को एक्सेस किया RDP के थ्रू से, आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज इसको पब्लिक IP मिला ही नहीं है। हाँ, सिर्फ इंटरनेट मिला है नेट के थ्रू से। तो अब चलते हैं कैसे इंटरनेट देंगे। तो नेट, टाइम कितना बचा हुआ है? 8 मिनट। अच्छा, तो मैं नेट दिखाई देता हूँ। नेट में इलास्टिक IP का कंसेप्ट होता है। जब आप नेट कॉन्फ़िगर करोगे देन यू हैव टू कॉन्फ़िगर इलास्टिक IP। इलास्टिक IP एक पब्लिक IP ही है, लेकिन ये स्टैटिक है। स्टैटिक है मतलब आपके लिए वो स्टैटिक IP फिक्स्ड है, आप उस IP को रिजर्व कर लिए। इसका चार्ज सबसे ज़्यादा है, मेरा पैसा कटेगा जब तक मैं इलास्टिक IP लेके रहूँगा, ठीक है। और उस नेट गेटवे में मुझे इलास्टिक IP को कॉन्फ़िगर करना है। अच्छा। जिसके थ्रू से मेरा प्राइवेट का मशीन, प्राइवेट नेटवर्क का सिस्टम का मशीन इंटरनेट में जा पाएगा। कैसे जाएगा? थ्रू इलास्टिक IP। इलास्टिक IP भी पब्लिक IP ही है, लेकिन ये फिक्स्ड IP है, ये स्टैटिक IP है। और सिस्टम के लिए जो पब्लिक IP मिल रहा था वहां से वो ऑटोमेटिक था, डायनामिक था, वो IP चेंज होता रहेगा। लेकिन इलास्टिक IP चेंज नहीं होगा, वो फिक्स हो गया, इसलिए चार्जेस का ज्यादा है, ठीक है। तो मैं फटाफट दिखाता हूँ, नहीं तो मेरा बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा। कैसे करना है? मेरा अब मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि मेरे जो प्राइवेट नेटवर्क में सिस्टम्स होंगे, 1 हो या 10 हो, 100 हो, सबको इंटरनेट मिले। कैसे? थ्रू दिस नेट गेटवे। ये नेट गेटवे मैं कहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ? पब्लिक सबनेट में होगा। कहाँ पे होगा? पब्लिक सबनेट में होगा। और इस नेट में मैं इलास्टिक IP भी कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। इस नेट गेटवे के अंदर मैं क्या कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलास्टिक IP। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। इलास्टिक IP आपको डिफाइन करना है, ठीक है। लेकिन जब आप डिलीट करोगे ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप डिलीट भी करना है। हाँ सर, ये तो वो भी काफ़ी जरूरी है सीखना। वही तो प्रॉब्लम, इसलिए तो इसी अरे इसी तो इंस्टेंस में कुछ मिला ही नहीं। फिर भी सर वो मेरे को ऑप्शन नहीं मिल रहा था ना। ठीक है, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। लास्ट टाइम वही देखेंगे। अभी आते हैं हम लोग VPC में। ये VPC हम लोग पहले भी आए थे इस जगह में, रूट टेबल कॉन्फ़िगर किए थे, सबनेट कॉन्फ़िगर किए थे। यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा नेट गेटवेज का, दिख रहा है? नेट गेटवेज का, ठीक है। तो नेट गेटवेज में आना है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी नेट गेटवे नहीं रहेगा, अब बनाओगे तभी रहेगा, ठीक है। तो कैसे क्रिएट करेंगे? क्रिएट नेट गेटवे। उसके बाद नेट गेटवे का नाम डाल दो। जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल दिया, इस नेट गेटवे का नाम डाल दिया KK
356 नेट गेटवे, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है सबनेट क्या होगा इसका, मतलब इसको आप किस सबनेट में बनाना चाहते हो? पब्लिक, यस। तो आपको यहाँ से क्या करना है, चूज करना है। यहाँ पे बहुत सारा सबनेट दिख रहा है, तो कौन सा सबनेट में यहाँ पे डालना है आपको? पब्लिक। तो कौन सा पब्लिक है? ये वाला नीचे की तरफ मिलेगा, लैब 7 पब्लिक। तो आपको प्लेस कहाँ पे करना है नेट को? पब्लिक सबनेट में। यहाँ पे प्लेस करोगे तो फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब ये पूछ रहा है कि इसका कनेक्टिविटी क्या होगा, इसको क्यों बना रहे हो आप? पब्लिक नेटवर्क के लिए कर रहे हो या प्राइवेट नेटवर्क के लिए? नहीं, पब्लिक के लिए। मैं चाहता हूँ प्राइवेट में जो सिस्टम्स है प्राइवेट नेटवर्क में, उसको क्या मिले? पब्लिक एक्सेस मिले। इसके लिए आपको यहाँ पे पब्लिक चूज करना है, तभी आपका इलास्टिक आईपी का ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पे प्राइवेट कर दोगे तो ये ऑप्शन ही हट जाएगा, ठीक है। हाँ, तो पब्लिक करके यहाँ पे आपको एलोकेट करना है। अब यहाँ से बिल स्टार्ट, ठीक है। ये मुझे दिखा रहा है कि मेरे लिए जो पब्लिक आईपी स्टैटिक आईपी जनरेट हुआ 34, 238, 75, 255, ये मेरा पब्लिक आईपी है, और ये पब्लिक आईपी मेरा फिक्स है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे चूज कर लिया और फिर मैं क्रिएट कर दिया, मेरा नेट गेटवे क्रिएट हो गया। हुआ या नहीं चेक कर लेते हैं। ये नेट गेटवे में चलते हैं। अभी दिखा रहा है मुझे नेट मेरे लिए कॉन्फ़िगर है, पेंडिंग दिख रहा है, पेंडिंग दिख रहा है। जब तक ये स्टेटस अप नहीं होगा इंटरनेट नहीं मिलने वाला, है ना। अभी चेक करते हैं कि ये मुझे इलास्टिक आईपी कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इलास्टिक आईपी में चलते हैं। यहाँ पे देखो इलास्टिक आईपी का ऑप्शन आ गया, ये मेरे लिए इलास्टिक आईपी दिया गया। अभी इसको चेक करते हैं और एक्सेल में चलते हैं। एसोसिएट इलास्टिक आईपी देखते हैं एक बार कि एसोसिएटेड है या नहीं। ठीक है, दिक्कत नहीं है, कनेक्टेड है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है मेरा। अभी सिर्फ चेक करना है आपको नेट गेटवे को, यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है। अच्छा, बस इतना करने से ही हो जाएगा क्या? सर अभी तो नेट गेटवे में इलास्टिक आईपी में साइन कर दिया, तो प्राइवेट में तो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा क्या? सर वो जैसे करते हैं क्लिक ऑन नेट गेटवे में क्लिक करें। এটা তো পাবলিকে বলো, পাবলিক और गेटवेটা তৈরি হয়েছে তো। हाँ। তো ওটা তো স্যার প্রাইভেটে प्राइवेट तो एक्सेस नहीं, नेट गेटवे में पब्लिक सबनेट में बना लिया, तो ये तो पब्लिक सबनेट दिखा रहा है, तो देखो इसलिए इसमें बनाया है। वही तो हुआ है। ये देखो, ये तो बना लिया ना, पब्लिक सबनेट के अंदर क्रिएट हुआ मेरा। ठीक है, दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना और आगे, लेकिन मुझे कहीं और कुछ करना पड़ेगा। पब्लिक में जाके, सॉरी प्राइवेट में जाके देखो यहाँ पे क्या करना है, एक चीज मुझे और करना है, ये मुझे करना है। ये कॉन्फ़िगरेशन बाकी था। हाँ, ये वाला बाकी था तो। हाँ, डिफॉल्ट नेट। ये नेट गेट। हाँ, प्राइवेट में तो जाके मुझे रूट टेबल में ये डिफाइन करना है कि मेरा प्राइवेट नेटवर्क अगर बाहर जाना चाहता है किसके पास जाएगा? नेट गेटवे के पास जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग नहीं किए हैं। अभी हम लोग नेट गेटवे अटैच कर दिए। अभी मुझे ये डिफाइन करना है कि मेरा रूट टेबल जो है, कौन सा रूट टेबल? प्राइवेट वाला रूट टेबल, उसका रूट्स में जाना है और एडिट रूट करना है और ऐड रूट करना है। और इस साइड नेट गेटवे से और ये मेरा डिफॉल्ट राउटिंग हो गया बाहर जाने का। यहाँ पे नेट गेटवे से और यहाँ पे आपको चूज करना है क्या? नेट गेट। नेट गेटवे। कौन सा नेट गेटवे? जो हम लोग क्रिएट किए। हाँ। ये सर उसके बाद सेव चेंजेस कर दें। तो आपका प्रैक्टिकल पूरा कंप्लीट हो गया। नेट गेटवे में आपको देखना है, अभी दिखा रहा है कि अवेलेबल। अब इंटरनेट में अभी मेरे ख्याल से ये जो मशीन है इंटरनेट इसको मिल जाना चाहिए। कौन सा मशीन को? मिल गया तो। नहीं, ये तो मेरा पब्लिक वाला मशीन है, ये वाला प्राइवेट वाला मशीन है। हाँ सर मिल गया। अभी चेक करते हैं, पिंग करते हैं गूगल को। google.com पहले तो पिंग नहीं हो रहा था, आ गया, हो गया कनेक्ट। हो गया करेक्ट? हम्म। यस सर। क्लियर?
तो ये प्रैक्टिकल आपका अगर हो जाता है यहाँ तक, इसका मतलब आपका हो गया। अब हम फटाफट इसको डिलीट करते हैं, नहीं तो बिल आएगा काफी। हाँ नहीं, मशीन्स पहले EC2 इंस्टेंस पहले डिलीट करोगे, ठीक है? पहले तो EC2 इंस्टेंस को डिस्कार्ड कर दो यहाँ से, जितने सारे बनाए हो आप, मतलब एक्सेस किए हो। मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, बंद कर दिया। सबसे पहले आप नेट गेटवे में जाओ, नेट गेटवे में जाकर के चेक करो, एक्शन में जाओ, क्योंकि इसको पहले डिलीट करना है। लिखना है क्या है? डिलीट। उसके बाद डिलीट कर दे। डिलीट करने का तरीका सीखो, कैसे डिलीट करोगे। रिफ्रेश करके देख लो यहाँ पे क्या दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है स्टेटस में डिलीटिंग, मतलब ये डिलीट हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद नेट गेटवे डिलीट हो गया, इसका मतलब ऐसा मत सोचो कि आपका इलास्टिक आईपी चला गया। आपका इलास्टिक आईपी रिजर्व है, अभी भी डिटैच सिर्फ हो गया है, लेकिन आप उसको लेकर रखे हो और ज्यादा बिल आएगा। तो इलास्टिक आईपी में जाना है, ये इलास्टिक आईपी है, चेक करना है। उसके बाद एक्शन में जाना है और इलास्टिक आईपी को क्या करना है? रिलीज कर देना है कि मैं छोड़ दिया, ठीक है? रिलीज कर दो। अभी क्या बोल रहा है कि कैन नॉट बी रिलीज बिकॉज ये आपका EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। अब क्या करना है? फटाक से जाना है EC2 में, और जो भी EC2 बनाए हो उसको डिलीट करना है। कैसे डिलीट करोगे? चेक करो दोनों को और एक्शन में जाओ, और नहीं इंस्टेंस स्टेटस में जाओ, टर्मिनेट करो और टर्मिनेट कर दो, ठीक है? और एक बार देखो ये क्या दिखा रहा है स्टेटस में। अब वापस जाना है मुझे BPC में। BPC के अंदर इलास्टिक आईपी का ऑप्शन आता है। आप इलास्टिक आईपी में जाएंगे, वापस चेक करते हैं इसको और ट्राई करते हैं रिलीज करने का। रिलीज इलास्टिक आईपी, अभी मुझे ऑप्शन दे दिया रिलीज करने, अभी रिलीज हो गया। नेट गेटवे देखो अभी भी डिलीट नहीं हुआ होगा, डिलीटेड दिख रहा है, लेकिन यहाँ से हटा नहीं, लेकिन हट जाएगा कुछ देर बाद। अच्छा, अब और क्या करना है? तो नेट गेटवे डिलीट करना है। और आपको जो भी आप किए हो अब एक एक करके करो। हम लोग क्या किए थे? IGW को रूट टेबल, रूट टेबल को डिलीट करना है। हम लोग रूट टेबल बनाए थे दोनों। एक्शन में जाना है और डिलीट रूट टेबल। अभी क्या बोल रहा है? रूट टेबल हैज एसोसिएटेड विद कैन नॉट बी डिलीटेड। अच्छा, एसोसिएट किया हुआ है, तो पहले एसोसिएट जिससे है, किससे एसोसिएट है? सबनेट से। क्या डिलीट करना चाहिए हम लोगों को? हम लोग सबनेट बनाए हैं, सबनेट डिलीट कर देते हैं, डिलीट सबनेट। तो इस तरह से आप मैसेज पढ़ के करना, जिससे आपको समझ में आए कि क्या एक्चुअली हो रहा है। हा? ये तो रिवर्स लग रहा है, जैसे बनाए वैसे ही हटा रहे। हाँ, अब हम लोग रूट टेबल में चलते हैं और ट्राई करते हैं डिलीट करने का। अभी मुझे डिलीट का दे दिया ऑप्शन। अगर आप देख रहे हो डिलीट कर रहे हैं, डिलीट करने का मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा है, बोल रहा है एसोसिएट है किसी और से, तो आप थोड़ा सा सोचो कि ये किस में कहाँ पे ये कन्फिगर है, पहले उसको डिलीट करो, तब वो डिलीट करने का ऑप्शन मुझे देगा। ठीक है, ये हो गया, सबनेट डिलीट हो गया, रूट डिलीट हो गया। अब मुझे इंटरनेट गेटवे को हटा देना है। हमारा इंटरनेट गेटवे ये है, एक्शन में जाना है और पहले तो इसको डिटैच कर दो BPC से, हट गया। अभी इसको वापस एक्शन में जाओ और डिलीट करो, लिखो डिलीट। हाँ, लिख लो, हो गया। और क्या करना है? BPC बनाए ना, BPC को हटाओ, एक्शन में जाओ, डिलीट BPC। डिलीट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना है? डिलीट। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं। आपको फिर भी चेक करना है, डैशबोर्ड में आ जाओ। और डिफॉल्ट BPC एक ही रहता है, सबनेट 6 होता है, नेट गेटवे एक ही रहता है, नहीं रहता है नेट गेटवे। तो नेट गेटवे में डिलीट कर दिया, लेकिन अभी ये हटा नहीं है, कुछ देर बाद ही ये हट जाएगा। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा, नहीं, उसका बिलिंग नहीं आएगा। अगर आपको दिख रहा डिलीटेड है तो कुछ नहीं होगा उससे। सिक्योरिटी ग्रुप एक है, बाकी सब ठीक ठाक मुझे लग रहा है। अब चलो EC2 में, कहाँ पे आ रहा है? EC2।
तो ये सब चीज आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। की पेयर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, सिक्योरिटी ग्रुप दिख रहा है। की पेयर्स हम लोग बनाए थे, है ना, बनाए थे ना की पेयर। उसको क्या करना है, डिलीट कर देना है। हाँ होएगा, अच्छा लिख देना है क्या, डिलीट। तो जो बनाए हो उसको डिलीट कर दो। की पेयर में डिलीट हो गया। सिक्योरिटी ग्रुप एक होता है जो डिफॉल्ट होता है, ये हम लोग नहीं बनाए। अगर यहाँ पे अपना सिक्योरिटी ग्रुप दिखता है तो डिलीट करना है, नहीं तो नहीं करना। हाँ तो गूगल मीटिंग सर ये वाला रिकॉर्डिंग রেকর্ডিং कहाँ से ওরা বলেছে রেকর্ডিং এর জব করে এই একটা সফটওয়্যার আছে যেটা দিয়ে করছি। ठीक है, हो गया, मैं स्टॉप कर दिया। ये प्रैक्टिकल करना है सबको। अगर टाइम मिलता है तो कल आ जाओ। मैं 9:30 से देखता हूँ लैब खाली रहता है। संडे है सर। सॉरी मंडे को आ जाओ। 9:30 से लैब खाली रहता है तो 9:30 से कर सकते हैं। और ट्यूसडे को हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट डे बीपीसी पेयरिंग कैसे करते हैं, जब दो अलग अलग बीपीसी है कैसे कनेक्ट करते हैं। असाइनमेंट गुलो में साइन कर দিচ্ছি দাও। ঠিক আছে, किसी का कुछ क्वेरी है क्या? এই দেখুন এটা হচ্ছে রেকর্ডিং সফটওয়্যার যেটা দিয়ে করছি আমি। ये पावर रिकॉर्डिंग, ये पावर